Hello friends, hope you all are doing very well. Welcome to my YouTube channel Accounting Knowledge. In this video lecture, we are going to learn the valuation of goodwill and the shares. This topic is helpful to the TWABAP students as well as FYBBI students. So it is my request to all viewer, please like and subscribe it. Okay. So in the first lecture, we already have explained what is goodwill and what are the methods of goodwill. Those who have not watched my first lecture, the link of the first lecture is given in the description. So let's move forward. In this lecture, we are going to learn that is some more methods of calculation of goodwill. So in my previous lecture, I already explained that is there are total 4 methods of valuation of goodwill. The first one is what? That is the number of years of purchase of FMP method. Second one is the number of years of purchase of super profit method. The third one is capitalization of FMP method. And the fourth one is capitalization of super profit method. So in my first lecture, I already explained that is what are the first method, means how we have to calculate the goodwill as per the number of years of FMP method. And what is FMP? In all detailed information about the FMP I had explained in my first lecture. Okay, so once again I am saying those who have not watched my first lecture, please watch it. The link of the video is given in the description. Okay, so let's move forward. Here we are going to learn that is the second methods of calculation of goodwill, that is called number of years of purchase of super profit method. Okay, so if in the sum it is given, you have to calculate the goodwill as per number of years of super profit method. So what you have to do? Okay, so in that your first step is that you have to calculate the FMP. What is the full form of FMP? That is future maintainable profit. So in my first video lecture, I explained what is FMP and how the FMP has to be calculated. Okay. The second step is that what we have to do, we have to calculate the capital employed. The second step is that we have to calculate the capital employed. Okay. So students, what is capital employed? Okay, first we have to understand what is capital employed and how we have to calculate the capital employed. That is very important. Okay, so what is capital employed? The capital employed is that when any fund has to be collected by any businessman. Okay, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंड्स बिजनेस के द्वारा, ओके, कोई भी फंड जब बिजनेस के द्वारा कलेक्ट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉय. अभी कैपिटल एम्प्लॉय क्या करने का, कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है. क्या होता है? 2 मेथड. फर्स्ट वन इज असेट्स बेसिस मेथड एंड सेकेंड वन इज अ लायबिलिटी बेसिस मेथड. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय एज पर द असेट्स बेसिस मेथड. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज इन द सम व्हेन द असेट्स इंफॉर्मेशन इज गिवन. जब सम में क्या दिया हुआ रहेगा? फिक्स असेट दिया रहेगा, करेंट असेट्स दिया रहेगा और सम एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया होगा. तो हमको क्या करना रहता है? हमको असेट्स बेसिस के बेस पर हमको क्या कैलकुलेट करना रहता है? कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करना रहता है. बट अगर सम में क्या दिया हुआ रहेगा? शेयर कैपिटल दिया हुआ रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ रहेगा, तो हमको क्या करना रहता है? लायबिलिटीज के बेसिस पर कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करना रहता है. ओके, सो यू कैन कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉय एज पर द असेट्स मेथड और यू कैन कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉय एज पर द लायबिलिटी बेसिस. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट करना रहता है असेट्स बेस पे. तो मैंने ऑलरेडी बताया कैपिटल एम्प्लॉय होता क्या है. इट इज अ सच टाइप ऑफ फंड विच हैज टू बी ओन बाय द बिजनेस मैन, और जो क्या करता है, बिजनेस का खुद का फंड होता है, उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉय बोलते हैं. ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए दैट इज क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहना चाहिए. सबसे पहले क्या दिया हुआ रहना चाहिए? असेट्स दिया हुआ रहना चाहिए. तो हमको सबसे पहले क्या देना रहता है? सबसे पहले हमको क्या लेना रहेगा? दैट इज असेट्स लेना रहेगा. और तुमको ऑलरेडी पता है असेट्स में क्या क्या आता है. दैट इज फिक्स असेट्स आता है और करेंट असेट्स आता है.
वन मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या क्या दिया हुआ रहता है, फिक्स असेट दिया रहता है, इन्वेस्टमेंट दिया रहता है और करंट असेट दिया रहता है. सो ऑलवेज इन्वेस्टमेंट को हमको लेना नहीं रहता है. ओके, क्यों हमको इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना रहता है वो हम लोग आगे बताएंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या लेना है हमको, फिक्स असेट्स लेना है और करंट असेट्स लेना है. तो सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिक्स असेट्स लेंगे और करंट असेट्स लेंगे. क्लियर, उसका अमाउंट हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी. फिर उसके बाद क्या करना रहता है, हमको एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करना रहता है. ओके, नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, दैट यू ऑलरेडी हैव लर्न. ऑल लायबिलिटी अदर देन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. सारी लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी हम लोग बोलते हैं, जो क्या रहता है, दैट इज जो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा होता है. तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा कौन कौन सा लायबिलिटी होता है, दैट इज डिबेंचर, लोन, बोरोड फंड. ये सब किसके अंदर आता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर आता है. ओके, जब हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, नेट रियल असेट्स मिलता है. क्या मिलता है, नेट रियल असेट्स. ओके, आफ्टर गेटिंग द नेट रियल असेट्स व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज नेट रियल असेट्स मिलने के बाद अब हमको क्या करना रहता है, व्हाट वी हैव टू डू, हमको नॉन ट्रेडिंग असेट्स को माइनस करना रहता है. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज नॉन ट्रेडिंग असेट्स. ओके, सो अगेन जब मैंने एफएमपी बताया था आपको कि व्हाट इज एफएमपी, इन दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज नॉन ट्रेडिंग असेट्स. बट फिर से मैं बता दे रही हूँ, ऐसा असेट्स ओके विच हैज, और ऐसा असेट जो क्या किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन यूज नहीं किया जाता है, उसको नॉन ट्रेडिंग असेट्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट. ओके, इन्वेस्टमेंट इज अ नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस. हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा कुछ अलग सोर्स ऑफ इनकम होता है. ओके, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. तो जो इन्वेस्टमेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमारा नॉन ट्रेडिंग असेट्स होता है. लेकिन अभी देयर आर सर्टन कंपनी जो क्या करती है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही बिजनेस करती है, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग असेट्स होगा. अंडरस्टूड. ओके, बट अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग असेट्स है तो वो सब में क्या किया रहेगा, आपको स्पेसिफाई किया रहेगा. और नहीं स्पेसिफाई किया है तो हमको इन्वेस्टमेंट को क्या करना रहता है, एज अ नॉन ट्रेडिंग असेट्स ट्रीट करना रहता है. क्लियर व्हाट आई सेड. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नॉन ट्रेडिंग असेट्स का अमाउंट लिखोगे. क्लियर. नेट रियल असेट्स में से आपको क्या करना रहता है, नॉन ट्रेडिंग असेट्स माइनस करना रहता है. जब आप उसको माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉय. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या मिला, ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉय मिला. वंस यू गेट द ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉय, उसमें से क्या करना रहता है आपको, लेस हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. मतलब करंट ईयर में, मतलब करंट ईयर में आप क्या करोगे, करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट आप अर्न किए रहोगे उसको आपको क्या करना रहेगा, लेस करना रहेगा, उसका हाफ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50,000 अर्न किया है तो आपको कितना माइनस करना रहेगा, 25,000 माइनस करना रहेगा. आपने अगर 25,000 माइनस किया, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर. क्या मिलता है आपको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर. तो यही हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉय होता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉय बोलते हैं. ओके, अभी क्या होता है, कभी कभी सम में बोलेंगे, अगर सम में वो बोलेंगे कि आपको क्या करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय लेना है. क्या लेना है आपको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय लेना है. तो जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉय है उसमें से क्या करोगे, करंट ईयर का प्रॉफिट का हाफ ऑफ अमाउंट आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय मिलेगा. क्लियर. लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं, सब में कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा. जब कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हमको क्या लेना रहेगा, हमको ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉय लेना रहेगा. क्या लेना रहेगा, ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉय लेना रहेगा. क्लियर व्हाट आई सेड, ये आपको ध्यान में रखना है. दिस ऑल थिंग वी विल गोइंग टू लर्न व्हेन वी विल स्टार्ट द सम. क्लियर. सबसे पहला स्टेप्स, अगर आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, हमको एफएमपी कैलकुलेट करना रहता है. फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना रहता है, कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करना रहता है. कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने का दो मेथड होता है. फर्स्ट वन इज असेट्स मेथड, सेकेंड वन हम लोग पढ़ेंगे
दैट इज सेकेंड मेथड का क्या होता है, ये भी सेकेंड स्टेप है। तो आपको या तो असेट बेसिस वाला मेथड यूज करके कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करना रहता है, या तो आपको लायबिलिटी बेसिस वाला मेथड यूज करके कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करना रहता है। कभी भी दोनों मेथड यूज नहीं करना रहता है। इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने इसको भी मैंने सेकेंड स्टेप्स लिखा है और इसको भी मैंने सेकेंड स्टेप्स लिखा है, मतलब दोनों में से कोई भी एक मेथड आपको सिलेक्ट करना रहता है। ओके, अभी कैपिटल बेसिस के ऊपर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला आइटम यहाँ पे आपको लिखना रहता है शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल में क्या आता है, इक्विटी शेयर भी आता है और एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स भी आता है। फिर आपको क्या लेना रहता है, सेकेंड वन, ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लेना रहता है, ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके साथ साथ गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ नेट असेट्स, उसको भी आपको ऐड करना रहता है। अभी ये क्या होता है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ नेट असेट, आपको पता है क्या होता है, दैट इज ओल्ड बैलेंस शीट में आपका असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग क्या दिया है 20,000। न्यू बैलेंस शीट जब आप बना रहे हो तो आप असेट्स के प्राइस को इंक्रीज करोगे, 22,000 करोगे, तो आपको क्या हो रहा है, 2,000 का गेन हो रहा है। तो वो जो गेन होता है उसको भी आपको क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। क्लियर व्हाट आई सेड। ओके, वो करने के बाद आपको क्या करना रहता है, लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। आपको पता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी डेबिट बैलेंस रहता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी आपको उसको क्या करना रहता है, दैट इज आपको क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। और नेक्स्ट वन क्या करना रहता है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, गेन ऑन रिवैल्यूएशन को ऐड करना रहता है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को माइनस करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ओल्ड बैलेंस शीट का लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस कितना था, 20,000, लेकिन आपने जब नया बैलेंस शीट बनाया तो उसमें आपने असेट्स का प्राइस कम कर दिया, वहाँ पे वो कितना है 18,000, तो 2,000 को आपको लॉस हो रहा है, तो वो 2,000 आप क्या करोगे, लेस करोगे। क्लियर व्हाट आई सेड। तो लायबिलिटी बेसिस पे क्या करना रहता है, शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व एंड सरप्लस, लेस प्रॉफिट एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस। ओके, उसके बाद आपको क्या मिलता है, नेट असेट्स मिलता है। ओके, नेट असेट्स मिलने के बाद आपको क्या करना रहता है, लेस गुडविल इफ अफियर इन द बैलेंस शीट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सम में बैलेंस शीट के अंदर गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको हमको क्या करना रहता है, लेस करना रहता है। क्यों, बिकॉज हम लोग ये चैप्टर में ऑलरेडी सीख रहे हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करना रहता है। क्लियर व्हाट आई सेड। तो वो गुडविल को हमको कहीं पे भी क्या करना रहता है, ऐड नहीं करना रहता है। अगर वो दिया रहेगा तो उसको क्या करने का, लेस करने का। नेक्स्ट वन इज दैट, वो लेस करने के बाद आपको क्या मिलता है, टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉय। क्या मिलता है, टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉय। तो अगेन इट विल बी लाइक नेट रियल असेट्स। तो यहाँ पे क्या मिला था आपको, नेट रियल असेट्स मिला था, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉय। यहाँ पे आपने क्या किया था, नेट रियल असेट्स में से लेस नॉन ट्रेडिंग असेट्स किया था। यहाँ पे भी आप करोगे, क्या करोगे, लेस नॉन ट्रेडिंग असेट्स करोगे। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट, आपको क्या मिलेगा उसके बाद, दैट इज माइनस करने के बाद ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉय। आगे का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा जो असेट्स बेसिस में रहता है। तो देखो ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉय मिलेगा, ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉय मिलने के बाद आपको क्या करना रहेगा, हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वो माइनस करना रहेगा। जब आपने वो माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। समझा। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स क्या होता है, लायबिलिटी बेस में थोड़ा चेंज होता है एज पर द असेट्स बेसिस में। वंस अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ, असेट्स बेस में हमको क्या करना रहता है, असेट्स बेसिस पे हमको क्या करना रहता है, ऑल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, है कि नहीं, ऑल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बाकी का दैट इज सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ मेथड क्या होता है, सेम होता है, किसके अंदर, लायबिलिटी बेसिस से। यहाँ पे क्या करना रहता है, शेयर कैपिटल एड रिजर्व एंड सरप्लस लेस प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दैट इज क्या ध्यान रखना है, असेट्स बेसिस में ये दोनों चीज ध्यान रखना है, और लायबिलिटीज में क्या ध्यान रखना है, 1 2 3 ये 3 चीज ध्यान रखना है। बाकी का नीचे का पार्ट क्या रहता है, दोनों मेथड में सेम रहता है। अंडरस्टूड, होप यू क्लियर दिस थिंक वेरी वेल कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉय। एक बार आपको कैपिटल एम्प्लॉय आ गया तो वेरी इजीली आप क्या कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वेरी इजीली क्या कर सकते हो, आप गुडविल भी कैलकुलेट कर सकते हो।
सो लेट्स थर्ड स्टेप देखते क्या होता है हमारा। स्टेप्स नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी ये क्या होता है, ये ऑलरेडी सम में दिया हो रहता है, ये सम में दिया रहेगा, कुछ 10%, कुछ 15%, 20% ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या होता है, जब कोई भी इन्वेस्टर क्या करता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो डेफिनेटली उसका कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि 1 ईयर के बाद मुझे 10% मिलने वाला है, 20% मिलने वाला रिटर्न प्रॉफिट। तो वो जो उसका एक्सपेक्टेशन होता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि क्या उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं, 10% मुझे मिलेगा, 20% मुझे मिलेगा। तो जो उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उसको ही क्या बोला जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर। स्टेप्स नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब क्या करना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मल प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो कैसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हियर यू कैन से कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एनआरआर डिवाइड बाय 100। हमेशा याद रखना है, एनआरआर क्या रहेगा, न्यूमिनेटर में रहता है और 100 डिनोमिनेटर में रहता है। क्लियर व्हाट आई सेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉय कितना आया है, 8 लाख आया है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, अगर आपका एनआरआर 10% है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 8 लाख का 10% 80,000 है कि नहीं, तो कितना आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, 80,000। क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड, स्टेप्स नंबर 5। अब आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना रहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इट इज अबाव द नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होता है, अबाव द नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो हम लोग ने क्या किया, स्टेप्स 1 में कैलकुलेट किया था। स्टेप्स 1 में हम लोग ने कैलकुलेट किया था कि FMP कहाँ से मिला, वो मिलने के बाद फिर हमको माइनस करना रहता है। क्या माइनस करना रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो हमको कहाँ मिला है, देखो स्टेप्स 4 में मिला है। क्लियर व्हाट आई सेड। तो जब FMP से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, सुपर प्रॉफिट। एक बार आपको सुपर प्रॉफिट मिल गया, इजीली व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैलकुलेट द गुडविल। तो यहाँ पे देखो स्टेप 6, आपको क्या करना रहता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, सब में बोलेगा कैलकुलेट गुडविल एज पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले FMP करना रहता है। सबसे पहला स्टेप्स क्या करना है, FMP। सेकेंड स्टेप्स या तो असेट्स बेस वाला लेना है, या तो आपको क्या लेना है, लायबिलिटी बेस वाला लेना है। क्लियर व्हाट आई सेड। दोनों में से कोई एक लेके आपको कैपिटल एम्प्लॉय करना है। जैसे ही आपने कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट कर लिया, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। वो सम में ऑलरेडी दिया रहेगा, उसको जस्ट आपको राइट डाउन लिख लेना है। वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप्स 4 नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट मिलने के बाद स्टेप्स 5 में आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो रहेगा 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, ओके 2 ईयर्स, वो सम में दिया रहेगा। सिर्फ सुपर प्रॉफिट आपको यहाँ से मिलेगा, उसमें से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। सो होप यू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला मेथड होता है गुडविल का। गुडविल का सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, जो मैंने ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छे से। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा, लिंक ऑफ फर्स्ट लेक्चर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। क्लियर। तो जब आप फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे तभी आप सेकेंड लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते। सो हियर यू कैन सी, सबसे पहला मेथड होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ FMP मेथड, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो ऑलरेडी हम लोग ने देखा। थर्ड वन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP मेथड, एंड फोर्थ वन होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो थर्ड वन अभी हम लोग देखेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP मेथड। अब ये कैपिटलाइजेशन वाला जो होता है बहुत ही ईजी होता है।
क्लियर, इसमें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड मेथड्स के फॉर्मूला बहुत ही लॉन्ग होते। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एफएमपी कैलकुलेट करना है, जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, तो आप वहाँ से देख लेंगे कि एफएमपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ही आपने एफएमपी कैलकुलेट कर लिया, फिर सेकेंड स्टेप्स में आपको क्या करना रहता है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करना रहता है। क्लियर व्हाट आई सेड? सो हियर यू कैन से दैट इज वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एफएमपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। ओके, लेकिन जब हमको एफएमपी कैलकुलेट करना रहता है उस समय हमेशा याद रखेंगे एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड एफएमपी मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब न्यूमिरेटर में 100 रहता है और डिनोमिनेटर में एनआरआर रहता है। तो यहीं पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, एफएमपी मल्टीप्लाई बाय एनआरआर डिवाइड बाय 100, ऐसा नहीं करना है, एफएमपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। क्लियर व्हाट आई सेड? सेकेंड स्टेप्स के बाद थर्ड स्टेप्स में हमको क्या करना रहता है, नेट टेंजिबल असेट्स कैलकुलेट करना रहता है, जिसको कैपिटल एम्प्लॉय बोलते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ने कैपिटल एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट करना रहता है वो हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा। कैसे कैलकुलेट करना रहता है, लास्ट स्लाइड्स में देखा। दैट इज ऑल असेट्स, दैट इज फिक्स असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉय मिल जाएगा। ओके, स्टेप्स 4 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे आप देखो गुडविल कैसे मिलेगा आपको, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल असेट्स, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल असेट्स। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस आपको कहाँ से मिला, आपको दैट इज स्टेप्स 2 से मिला। उसमें से आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉय स्टेप्स 3, ये ऑलरेडी सम में दिया रहेगा, या तो आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, उसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा। क्लियर व्हाट आई सेड? तो थर्ड स्टेप्स भी अपना हो चुका, थर्ड मेथड भी कंप्लीट हो गया, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी मेथड। इसमें सबसे पहले हमको एफएमपी कैलकुलेट करना है, सेकेंड वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करना है, थर्ड कैपिटल एम्प्लॉय, फोर्थ गुडविल। क्लियर व्हाट आई सेड? नेक्स्ट फोर्थ मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, सुपर प्रॉफिट। अब भी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे आप देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। अगर आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सबसे पहले एफएमपी कैलकुलेट करो, फिर कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करो। कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, या तो असेट्स या तो लायबिलिटी। क्लियर? थर्ड वन आपको क्या करना रहता है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो ऑलरेडी सम में दिया रहेगा। फोर्थ वन आपको क्या करना रहेगा, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद वो कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एनआरआर डिवाइड बाय 100। फिफ्थ वन क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज आपको इससे सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद आपको क्या करना है, दैट इज गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। वंस अगेन यहाँ पे देखो, एफएमपी में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दैट इज यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एफएमपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। वैसे यहाँ पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। अंडरस्टूड? तो ये क्या था अपना लास्ट मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वंस अगेन, अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना रहता है तो देयर आर टोटल 4 मेथड। ये 4 मेथड पे ही आपको सम्स आते एग्जाम में। सबसे पहला मेथड होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एफएमपी मेथड, जो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सेकेंड मेथड होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया।
थर्ड वन क्या होता है, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP मेथड, थर्ड वन। एंड फोर्थ वन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो टोटल 4 मेथड से हमको क्या करना रहता है, गुडविल कैलकुलेट करना रहता है। क्लियर। अब हम लोग एक स्मॉल सा सम करेंगे विच इज बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP मेथड। ओके, एकदम स्मॉल सा सम देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉय 8,05,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज NRR 12%, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है 2,05,000, सेकेंड ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है 3,10,000 एंड थर्ड ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है 3,04,000। ये क्या दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है 50%। कंप्यूट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP मेथड, सेम थर्ड मेथड, यही वाला मेथड है, कैलकुलेट गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP मेथड। क्लियर व्हाट आई सेड। लेट्स सी आवर सॉल्यूशन। ओके, तो ऑलरेडी फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग सम देखेंगे। सबसे पहले अभी हमको क्या करना रहता है, यहाँ पे FMP कैलकुलेट करना रहता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था FMP क्या होता है। सबसे पहले हमको पास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना रहता है, उसमें से एक्सपेंसेस और इनकम, ओके, उसको ऐड और लेस करना रहता है। अंडरस्टूड। अगर वो एक्सपेंसेस और इनकम नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट हमको क्या करना रहता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना रहता है, डायरेक्ट एवरेज। बिकॉज यहाँ पे देखो कुछ एक्सपेंसेस इनकम नहीं दिया है, सिर्फ प्रॉफिट दिया है बिफोर टैक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट पास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है अपना, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज 2,05,000, 3,10,000 एंड 3,04,000। उसको डिवाइडेड बाय 3 करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। क्या अपना एवरेज प्रॉफिट 2,88,000। अंडरस्टूड। वंस वी विल गेट द एवरेज प्रॉफिट, अब हमको क्या कैलकुलेट करना रहता है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो मिला है, क्या मिला है हमको, 2,88,000। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिला हमको, 2,88,000 माइनस 50%। 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ 2,88,000। किसका 50% लेंगे, 2,88,000 का 50% लेंगे तो कितना आएगा, 1,44,000। उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसको ही हम लोग FMP बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, FMP। तो कितना आएगा वो, 1,44,000। क्या मिल गया आपको, FMP मिल गया। पहला स्टेप्स आपका कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ FMP। सेकेंड स्टेप्स क्या करोगे आप, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, FMP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप्स, FMP क्या लिया मैंने, 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR। NRR कितना दिया हुआ है, सब में देखो दिया है, कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। तो वही 12% मैंने क्या लिया NRR। तो कितना मिला मुझे, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस मिला 12 लाख। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सम में दिया है, कितना दिया है, 8,05,000। तो यहाँ पे आप देखिए, दैट इज ऑलरेडी सम में दिया हुआ है 8,05,000। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वेरी इजी, लास्ट स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। हमारा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कितना आया, 12 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉय 8,05,000। 12 लाख माइनस 8,05,000, आपको गुडविल कितना मिलेगा, 3,95,000। गुडविल कितना मिलेगा, 3,95,000। सो होप यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या पढ़ा हम लोग ने, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर FMP मेथड। अंडरस्टूड। सो टोटल 4 मेथड होता है, उसमें से एक मेथड का सम ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया। ओके, सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर
I will going to bring more sum which is based on the other methods of calculation of goodwill. That is number of years purchase of FMP, number of years purchase of super profit, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अब सिर्फ प्रैक्टिकल सम्स क्या करूँगी, एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो इफ़ यू वांटेड टू अटेंड ऑल माय लेक्चर, सो प्लीज़ आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले लर्न करके आना. अगर आप ये सारे फार्मूला लर्न कर लोगे तो आप इजीली क्या कर पाओगे, प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व कर पाओगे. क्लियर? सो होप you all like my lecture, you understand the concept how to calculate the goodwill. Okay, if you understand the concept very well, if you like the lectures, please, it's my request, please subscribe my channel, share your friends and help to all needy people. Okay, stay connected with me, stay safe, stay healthy.